Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we'll start central orbits. This is important chapter. इससे क्वेश्चन आते हैं. Okay, so जो हमने एक्सेलरेशंस के टाइप पढ़े थे, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. This is basically implementation of that, and we discussed the inverse law, motion under inverse law. ठीक है, उन सब का एप्लीकेशन. इनफैक्ट देयर वोंट बी much new in this, apart from some differential equations which we have to remember. First we'll derive them and then we'll remember those. Okay, so let us start. First let us see what is central orbit. Okay, acha, we have already discussed that what is center of force. Center of force is that fixed point towards which force is always directed. Okay, and a force which is direct towards center of force is known as central force. Okay, central force which is always directed towards a fixed point, and this fixed point is nothing but center of force. Okay, like in this SHM we discussed. In rectilinear motion, in fact, we discussed such many laws. Okay, so this is central force. So basically, the trajectory traced by a particle under central force is central orbit. Okay, so what is central orbit? Central orbit, a trajectory traced by a particle acting under influence of central force is central orbit. Okay, so basically if a particle is tracing a path under a central force, then the path it travel, the locus of that path is central orbit. Okay, so this is as simple as that. Now we have already discussed that what is radial acceleration. Radial acceleration, if you have any doubt in this related to this concept, radial acceleration, transverse acceleration, then you may refer to previous lectures, motion in a plane, where I have discussed these. Okay, so radial acceleration is we derived that this is d square r dt square minus r d theta over dt square. Okay, and इसकी जो direction थी that was r के means in the direction of increasing r, in direction of increasing r. Okay, ऐसे ही ट्रांसवर्स जो था, ट्रांसवर्स acceleration, that was 1 by r t over dt r स्क्वायर d थीटा over dt, ये था. ठीक है, अब देखो सेंट्रल ऑर्बिट के केस में क्या होगा. अगर सेंट्रल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, देन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज सेंट्रल फोर्स, मींस दैट विल एक्ट टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट. ठीक है, जैसे मान लो ये जो है इस टाइप का पाथ है, दिस इज बीइंग ट्रेस्ड by the particle and this is the central force. Central force means this is the fixed center, it will always be directed toward this center. Okay, so देखा जाए तो there will be only radial acceleration, there won't be any transverse. In this direction there won't be any acceleration. ठीक है, so यहाँ से we central or in central orbit we what we can say that radial acceleration will be, let us say कि ये जो acceleration है, generally the standard notation is that ये इनवर्ड जो एक्सेलरेशन है इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो अगर ये कैपिटल P है तो ए आर क्या हो जाएगा, माइनस पी, बिकॉज ए आर की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर. ये आर है मान लो, तो इसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मीन्स ऑपोजिट टू दिस P, सो ए आर इज माइनस पी. ओके, एंड जो ट्रांसफर एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है इसमें, बिकॉज द ओनली फोर्स इज सेंट्रल फोर्स. बस इतना सा है. अब जो है हमें सोल्व कर लेना है. ए आर क्या है, AR is d square r dt square
माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस पी, एंड सेकेंड इक्वेशन जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है दैट इज डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, दिस हैज टू बी जीरो। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज कॉन्स्टेंट, this is some constant, right? This is some constant. Okay, let us call this constant h. ये is useful है, this will be used in when we'll derive differential equation. Okay, then we'll use this concept. बस ये हो गया। अब देखो इसमें, अच्छा इसमें ये है related t, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, show that central orbit is a planar curve. ओके बेसिकली वो प्लेन में होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे होगा देखो, अगर मान लो ये, जैसे मान लो ये कोई सेंट्रल ऑर्बिट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन जो भी एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, उसका जो पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर है, लेट्स टेक दिस फिक्स पॉइंट इज 0 0, ठीक है। देन जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन, ठीक है, ए वेक्टर इज डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर, ठीक है। बट क्योंकि इसमें सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो अगर इसमें देखा जाए, अगर आर क्रॉस, अच्छा ये तो पहले से ही इसमें डी स्क्वायर आर आर वेक्टर है, सो ऐसे ही रख सकते हैं इसको। अगर आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, दिस इज जीरो। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो एक्सेलरेशन है इसका, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और ये आर वेक्टर की भी डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डी स्क्वायर आर वेक्टर और डी टी स्क्वायर, बिकॉज आर वेक्टर, दिस इज बिकॉज ए वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो वेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया जा सकता है, इसको वी कैन राइट डी ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। अगर ये जो है ये टर्म अगर इसको देखा जाए तो देखो ये क्या होगा, दिस कैन बी रिटन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो डी आर ओवर डी टी, सेकेंड को ऐसे ही छोड़ा जाए, ठीक है, प्लस फर्स्ट वाले को छोड़ा जाए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया जाए। और देखो ये तो सेम वेक्टर हो गए, तो ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस उससे ऑफकोर्स जीरो होगा, बिकॉज एंगल तो जीरो हो गया उनके बीच, प्लस आर क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये तो यही है, दिस इज जीरो वेक्टर। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि ये जो है डी ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, दिस इज जीरो वेक्टर। और यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज सम कांस्टेंट वेक्टर, लेट अस से दैट इज एच वेक्टर, दिस इज कांस्टेंट वेक्टर बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो है। सो आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, अब अगर देखो इस इक्वेशन को लेट अस से इक्वेशन 2, तो अगर इसको डॉट प्रोडक्ट किया जाए, ओके, पुटिंग r or we can say scalar multiple of r vector अगर इसमें किया जाए ऑफ इक्वेशन 2, इसके स्केलर जो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा लिख सकते हैं ऑफ आर वेक्टर इन इक्वेशन 2, तो ये क्या होगा, आर वेक्टर से अगर इसका डॉट किया जाए तो आर क्रॉस डी आर, तो ये पहले से ही है, ये हो गया आर डॉट एच वेक्टर। अब देखो वी नो दैट कि जो ए क्रॉस बी डॉट सी, जो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, अगर इसकी ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट बेसिकली दिस इज डिटरमिनेंट ए बी एंड सी, डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो गया, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। सो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर देखो, ये भी आर वेक्टर, ये भी आर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट आर डॉट एच वेक्टर इज जीरो, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। भाई देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है,
और यहाँ पे कोई आर वेक्टर ले लिया हमने पॉइंट, ये मान लो फिक्स पॉइंट 0 है, ठीक है। तो अगर इसको ज्वाइन किया जाए और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो एच वेक्टर है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर माइनस 0, इसका डॉट एच से करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज ये वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है और एच वेक्टर इसका नॉर्मल है। सो आर डॉट एच, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0, 0 and h vector as its normal vector. Okay, so basically from this what we can say कि central orbit is in fact a planar curve. Okay.